Hello students, one of your most demanding video lectures. তোমালোকে কৈ আছিলা যে chapter wise questions practice কৰাব কাৰণে and physics ত বিশেষকৈ maximum student খালি physics কৰি আছিল ঠিক আছে মই লৈ আহিলো এতিয়া তো ইয়াত আমি ক্লাস 11 ৰ যিমান chapters আছে right from units and dimensions, kinematics, Newton law, rotation, heat, thermodynamics and up to SHM and waves আমি questions কৰি যাম ঠিক আছে So let's start with the first question. The radius of a sphere is measured to be 5.3 plus minus 0.1. Basically, यात तुमक true value आरो यात error to दी दिसे. Okay. Then calculate the percentage error in its volume. So प्रथम तो volume of a sphere formula जानी बोलेगा. Volume of the sphere is 4/3 pi into radius का cube. Now when you will do change याद जितना तुम्हें लिखी बात delta v upon v 4 3 आरु पाई ये बिला नंबर है तो नंबर में कुछ चेंजेस नहीं आएगा बट जो r है उसमें आएगा तो डेल्टा r by r एंड रिमेंबर जो चीज पावर में है वो सामने आ जाता है जस्ट लाइक लॉगरिथम ओके परसेंटेज खुद ही से मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया दुई फाले मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया ओके नाउ वैल्यूज के लिए पुट कर लो कामक a2 वैल्यू लागे okay ये फाले सो की होगा 3 into delta r that is the error 0.1 divided by r the true value which is 5.3 actually it's not the true value it's close to the true value तो कभी भी नहीं निकाल सकते into 100 अब देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं ऑप्शन से काम चला लूंगा डेसिमल को हटा दो पहले तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो गया 53 300 divided by 53 3 into 100 300 divided by 53 तो दीजिए बाबा যদি 50 হলে आंसर तो 6 আহিলে बट 53 দি डिवाइड करी आसो 300 तो 6 और पर অলপ কম आंसर आइबो 6 से थोड़ा छोटा आएगा 6 से थोड़ा छोटा ये रहा देखो 5.66% 6 से थोड़ा छोटा ऐसे हम लोग रूल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट A physical quantity, another standard question. A physical quantity is given by x equal to a square b divided by c square. Okay, the square है c2 ना है. If percentage errors in a, b and c are 1%, 2% and 3% respectively, net percentage error in x होला बोला. Same style. Net percentage error मैंने तुम्हें लिखी बात delta x by x into 100 is equal to a के लिए लिखूंगा मैं delta a by a into 100 but power 2 है तो 2 will come in the front. प्लस b करने में लिखिम डेल्टा b by b into 100 and c square तो तलत आसे लगत तो डिवाइड हले माइनस है किंतु एरर इज ऑलवेज मैक्सिमाइज तो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो हम लोग को प्लस ही करना है तो प्लस डेल्टा c by c into 100 और यहाँ पे भी पावर 2 है सो 2 will come in front. Now put the values according to question. This value a का बोला है 1% तो 2 into 1%, b का बोला है 2% तो प्लस 2% एंड c का बोला है 2 into this value is given in the question as 3% so 3% so आंसर की मान अब 2 plus 2 4 plus 6 10% is your answer is 10%. Option number c is the right answer. Option number c is the right answer. Okay ठीक है ऐसे ने ठीक है आगे बढ़ो. Next, find the dimensional formula of universal gravitational constant. तो प्रथम कथा तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जानिबो लगे. फोर्स जो होता है वो होता है g m1 into m2 divided by r square. Actually minus sign है because gravitational force is always attractive. But here what we have to do, we just have to find out the dimension of g. तो g का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे f into r square divided by m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिलो एटा बसवा फोर्स टू डायमेंशन की हबो मास into एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर mlt -2 ठीक আছে mlt -2 r is the distance so distance को আমি लेंथ दी करू r स्क्वायर আছে तो l स्क्वायर और m1 m2 मास है दैट मींस m into m तो एक m ने एक m को मार दिया ये m जब ऊपर जाएगा इट विल बिकम m -1 तलत हले पावर 1 ऊपर गले -1 यात पावर 1 আছে या 2 আছে 1 + 2 হয়ে যাব 3 জানা ন a to the power m into a to the power n সৰুতে পঢ়িছিলা সাকে a to the power m plus n আর ডিভাইড হলে মাইনাস হয়
तो 1 + 2 हो जाएगा 3 और t का पावर हो जाएगा -2। डायमेंशन का ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं m-1 L3 t-2, m-1 L3 t-2। Okay, that is your answer. Option number A is the right answer. All right, done. Next question number 4. Kinematics or question ahi gol. ठीक है, units and dimension कोडिलो में तो कैसे कि runner covers half of the circular path of radius 7 meter in 10 seconds. Okay. Suppose this is the circular path. The runner has started somewhere from here. It is radius of the circular path is given to you as 7 meter, and if he is starting at t equal to 0 seconds, he is running and reaching halfway. यहाँ तक पहुंचा वो, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचा कितने टाइम में? 10 सेकंड में पहुंचा, ठीक है। अब तुमको बोला एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो बस देखो एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इज इक्वल टू है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। सो एक्चुअल पाथ की ट्रेवल কৰিছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে, तो আমি জানো গোটে সার্কেলটো যদি কভার কৰিলে হয় তো पेरीमीटर किमान है 2πr, लेकिन ये आधा कवर किया है तो ये कितना होगा पाई टाइम्स ऑफ r। सो डिस्टेंस इज पाई टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय टाइम, तो देखिए साइड 0 to 10 माने 10 सेकंड्स। पाई का वैल्यू 3.14 एंड रेडियस इज गिवन टू यू एज 7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है सर। तो তুমি अगेन তুমি টুক্কা মাৰিব পাৰা, মানে হিট কৰিব পাৰা অপশনটো। কেনেকা হিট কৰিবা চোৱা, 10 দি যদি তুমি এটা ডিভাইড করে 0.3 हो जाबो, 7 into 3 है 21, माने 2.1 के आसपास ढूंढना है। ये रहा 2.2 2.2, तो हमार बी ऑप्शन और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। এতিয়া सेकंड पार्ट तो सर डिस्प्लेसमेंटर पर আমি एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी मोर, तो आंसर तो कम आना चाहिए, तो कम आने चाहिए तो मतलब ये होगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। तुम अभी टिक कर सकते हो डायरेक्टली, बट स्टिल करते हैं। अगर तुमको एवरेज वेलोसिटी बताना है, देन एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ इफ यू सी डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर? सो यार पर यार रेडियस 7 मीटर और ए2 रेडियस है 7 मीटर, किमान डिस्प्लेसमेंट होल 7 और 7 14 और टाइम किमान असेल 10 सेकंड, 14 डिवाइडेड बाय इट इज 1.4 मीटर पर सेकंड। आमार सी इज द राइट आंसर। मैं কৈছিলো তোমাক, ঠিক আছে। কোনবা যে নোট করা নাই পজ কৰি নোট কৰি লবা। Next, again another question from equations of motion. A car is moving at 20 meter per second is brought to rest. गाड़ी मूव कर रहा था कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से, और वो आगे जाके रेस्ट में आ गया। रेस्ट माने की v का वैल्यू 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0। किमान डिस्टेंस कवर কৰিছে 40 मीटर कवर কৰিছে, ठीक আছে। तो তোমাক কৈছে फाइंड इज ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, माने डी एक्सेलरेशन के बारे में या रिटार्डेशन के बारे में वो लोग ने पूछा है तुमसे। ओके, तो ठीक है, चलो भाई, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो जिसमें v u और डिस्प्लेसमेंट s आ रहा है और साथ में एक्सेलरेशन भी आ रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी टू 0 बिकॉज ब्रेक मारी रेस्ट वाला ही गोल। इनिशियल वेलोसिटी 20 असेल, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a আমি উলাব লাগে, আর ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান ট্রাভেল কৰিছে 40, तो ये हो যাব तुम्हारा 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 80 टाइम्स ऑफ a। अब मुझे a का वैल्यू निकालना है, 400 को उधर भेज दो। सो 80a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 400, दैट मींस a इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाय 80, 0 will cancel out and this becomes 5, minus 5 meter per second square। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्मूला बेस्ड इन योर AUCET एग्जाम, और मैं फिजिक्स और क्लास 11 और गुटे फॉर्मूला তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছো। सेम আমি ক্লাস 12 গৰো সব ফর্মুলা ডিসকাস কৰিম, আৰু তাৰপিছত মই 12 গৰো এনেকা সেশন লৈ আহিম, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে মই কৈ আছো ইউটিউবত স্টাर्टिंगर পৰা লাষ্টৰ লৈকে চাবা। তাৰপিছত কৈছে বল ইজ ড্ৰপ ফ্ৰম আ হাই টাवर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। ये तो nth वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड सेकंड वाला, ठीक है। मैं इसको सनत ही बोलता हूँ मेरे नाम से, SNet, ठीक है। वो होता है u प्लस a डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। এটা তুমি সোয়া বল ইজ ড্রপ বুলি কৈছে, ড্রপ কলে ইনিশিয়াল টু 0 হয়, ড্রপ কলে মানে ভেলোসিটি টু 0, ড্রপ মানে এনেকা পেলাইছে, তার মানে কি একু স্পিড दिया নাই, वेलोसिटी दिया नहीं, जस्ट एडी दिसे, तो वो वैल्यू तो 0 होगा। और क्योंकि हाइट से गिराया गया तो a का वैल्यू g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज इक्विवेलेंट फॉर ऑल। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, माने ए जे n और वैल्यू 2 1 2 and 3 हेतु डिफरेंट है।
তো চাই লোৱা যদি তুমি ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড চাব যোৱা তে তুমি লিখিবা 2 * 1 - 1 এনৰ জাগাত 1 পুট কৰি দিম 1 আহিব আৰু যদি তুমি সেকেন্ড লিখিব যোৱা তেতিয়া তুমি লিখিবা 2 * 2 - 1 4 - 1 3 আহি যাব আৰু যদি তুমি থাৰ্ড লিখিব যোৱা দেন তুমি লিখিবা 2 * এনৰ জাগাত 3 - 1 that means 5 আহি যাব তো ৰেশিও আমি কি পালো 1:3:5 which option number D is the right answer ठीक है D is the right answer next find the angle of projection for which the horizontal range of a projectile matches its maximum height माने रेंज का जो वैल्यू है वो हाइट के बराबर है मैंने तुमको दोनों फॉर्मूला बता के रखा है लास्ट सेशन में जिन्होंने मेरा क्लास 11 का एंटायर फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखा उसको रिक्वेस्ट है कि वो देख के आए तभी कर पाएगा सारा फॉर्मूला मैंने एक ही लेक्चर में कवर किया है 38 मिनट्स में सो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ डिवाइडेड बाय g एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g तो तुम्ही চাব পাৰা ইয়াৰ পৰা ধুনিয়াকৈ u² कैंसिल হৈ গৈছে g আৰু g कैंसिल হৈ গৈছে ঠিক আছে sin 2 থিটাক মই লিখিব পাৰো 2 sin থিটা cos থিটা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ফৰ্মুলা হয়নে আৰু এফালে তোমাৰ আছে sin স্কয়ার থিটা डिवाइडेड बाय হৈ যাব তোমাৰ 2 एक sin थीटा को काट देगा यहाँ पे ठीक है cos थीटा को sin थीटा के नीचे लेके जाओ और 2 को इधर लेके आओ तो 2 * 2 हो जाबो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है हो तुम्हार sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा ठीक है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा হয় আমার tan थीटा और 2 * 2 हो जाबो 4 तुम्हारा एंगल को दिसे तो थीटा = tan को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 4 थीटा = tan इनवर्स 4 ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर option number C is your right answer okay next two vectors of magnitude 3 and 4 units if their scalar dot product is 6 then find the angle between them देखो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है ये भी मैंने बोला ही था a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a b cos थीटा अब तुमको शायद एंगल निकालना है तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab अब वैल्यूज जो क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंगली एक्ट करो बोला स्केलर डॉट प्रोडक्ट इज 6 माने a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू दिया है 6 क्वेश्चन और इंडिविजुअल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है 3 और 4 तो 3 और 4 ठीक है तो 3 2 टाइम्स होगा 2 2 टाइम्स होगा मतलब ये आ गया 1/2 तो मेरे को मिल रहा है cos थीटा का वैल्यू मिल रहा है हाफ और cos थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 60 डिग्री तो cos हट जाएगा थीटा का वैल्यू तुमको मिल जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री इज योर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 a particle moves in a circle of radius 2 meter with a constant tangential speed of 10 meter per second calculate its centripetal acceleration of formula की কৈছিলো v square divided by r or you can write omega square into r क्वेश्चन v के टर्म में गिवन है v का वैल्यू दिया है 10 तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रेडियस की मान दिसे 2 ठीक है तार माने हो गल तुम्हार 100 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आइ गल तुम्हार 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके वेरी इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी तुमको फार्मूला याद है कर पाओगे फार्मूला याद नहीं कर पाओगे इसलिए मैं बोल रहा हूं पिछला वीडियो अच्छे से देखो जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया अभी तक मेरा पिछला वीडियो देखो भाई A constant force acts on a body of mass 5 kg changing its velocity from 3 to 7 meter per second in 2 seconds. Find the magnitude of the applied force. अच्छा मास दिया है ना तो फोर्स इक्वल टू है मास इनटू एक्सेलरेशन मास की मान दिया है तुम्हारा 5 एक्सेलरेशन की मान सो एक्सेलरेशन यहाँ पर लागू करो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो की मान दिया है 3 पूरा 7 होले गल ना तो 7 - 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 तो एक्सेलरेशन हमें पालो 2 तो आंसर है जब 5 into a का वैल्यू 2 पुट कर दो 10 न्यूटन इज योर आंसर इज 10 न्यूटन ऑप्शन नंबर बी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ओके सेकंड लॉ का एक तरीके से एप्लीकेशन है तार पिছত कैसे ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल बाय अ रोप अच्छा रस्सी से खींचा जा रहा है इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाट इज द टेंशन इन द रोप अरे भैया एक्सेलरेशन 3 है मास भी गिवन है सिंपल है भाई यहाँ पे नेट फोर्स क्या है टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन तो बकवास सवाल है भाई 30 न्यूटन एक सेकंड और क्वेश्चन है ठीक है सर 11 हो गल हमार 12 कैसे ए मास ऑफ 2 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल ठीक है सर ये एक टेबल है
जिसमें 2 kg का मास को रखा गया है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, ओके, म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.4। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए मिनिमल फोर्स कितना चाहिए होगा? तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन को बीट करना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू वो निकालोगे, तो उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा करोगे तो मूव करेगा। तो अब बात यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और यू नो दैट इफ यू ड्रॉ द एफबीडी, नीचे तो भाई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और दूसरा कांटेक्ट फोर्स लगेगा तुम्हारा नॉर्मल, करेक्ट, नॉर्मल लगेगा। अब नॉर्मल और mg मूवमेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा, ब्लॉक का मूवमेंट तो ऐसा होगा, तो नॉर्मल और mg हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो यहां पे तुम लिख सकते हो म्यू एस इंटू mg। अब देखो मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूं, म्यू एस का वैल्यू 0.4 गिवन है, मास का वैल्यू है 2 और g का वैल्यू अपने को 10 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.4 इंटू 2 इज 0.8 इंटू 10 इज 8। माई आंसर विल बी 8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली 8 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया, 8.000000000000001 मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 400 जूल, ठीक है सर। फाइंड द हाइट एट विच द एनर्जी बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो भैया अगर अभी वैल्यू कितना है 400, 400 का आधा कितना होता है 200। अब कितना हाइट में होगा? तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो एक पर्टिकुलर हाइट में जाके होगा। तो हाइट जब ट्रेवल करता है हम लोग सोचेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। ये 200 कैसे गया मैंने 400/2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आधा करो, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना है ऑब्जेक्ट का 2, g का वैल्यू 10 ले लो, और कितना हाइट में है शायद वो पूछा है तुमको, तो h का वैल्यू तुमको निकालना है। बहुत आसान है भाई, 2200, आंसर आ गया 10। h का वैल्यू आ गया 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर जाओगे काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा। आगे बढ़ो। एन इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर कैरिंग अ लोड ऑफ 500 kg थ्रू अ हाइट ऑफ, ठीक है, मास दिया है, हाइट दिया है और 10 सेकंड का टाइम दिया है, एवरेज पावर। अरे भैया देखो, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी क्योंकि हाइट ट्रेवल कर रहा है, और पावर अगर तुमको निकालना है उसी को तुम्हें डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है, दैट्स इट। तो अब E का जगह में मैं लिखूंगा mgh, हाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और नीचे टाइम। अब वैल्यूज पुट करो, m का वैल्यू कितना है 500, g का वैल्यू दिया है 10, हाइट दिया है 20, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 सेकंड। 10 ने 10 को मारा तो हो जाएगा तुम्हारा 5 to 10 और 3 टा 0, 10,000 वाट, ठीक है सर। ऑप्शन की दिशा 10,000 वाट माने कि 10 किलोवाट, किलो माने 1000, ठीक है। 10,000 वाट का मतलब क्या है 10 इंटू 1000 वाट, और 1000 वाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं किलोवाट, किलो मतलब 1000, तो आंसर इज 10 किलोवाट। नेक्स्ट, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, अनदर गुड क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। और इट टीचेस यू अबाउट द सेकंड कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द स्प्रिंग, ओके। इज कंप्रेस्ड बाय इतना, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला सब लिखाइছো মই যদি ক্লাস 11 और এই टॉपिक तो पढ़िसा ना सब पढ़िबा। हाफ kx² इज द फॉर्मूला, वैल्यू पुट करना है बस। हाफ k का वैल्यू कितना दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, और कितना है 0.1 का स्क्वायर करना है तुमको। तो देखो भैया हाफ इंटू में कैलकुलेशन तुमको करना सिखा रहा हूँ, 0.1 का स्क्वायर को तुम लिखोगे 0.1 इंटू 0.1, ঠিক আছে। এটা ডেসিমেল যদি গুছাই দিয়া এটা 0 যাবগৈ, আর এটা ডেসিমেল যদি গুছাই দিয়া আর এটা 0 যাবগৈ। 2 ने 2 को मार दिया तो देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आ गया 1, खत्म। 1 जूल एबला मेंटली करियो पारे। 2 masses 2 kg and 4 kg, ओके। रोटेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, टफेस्ट चैप्टर करा ना, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, सबे टफ पाए। 2 masses 2 kg and 4 kg are placed at a distance 6 meter apart, एने का क्वेश्चन नीट होता है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू द 2 kg मास, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एक 2 kg का मास है और एक 4 kg का मास है, ठीक है, मानिसो। आरो कैसे की 2 kg 4 kg, ठीक है, जी ऐसे इन दोनों के बीच का दूरी तुमको गिवन है 6 मीटर गिवन है, ठीक है, ओके। तो तुमको बोला है लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू द 2 kg, ठीक है। मैं এটা कंसीडर करूं कि भाई 2 kg से ये जो दूरी है, 2 kg से जो ये दूरी है वो बेसिकली मान लो x है,
ठीक है, तो 4 kg से कितना दूरी हो जाएगा, 6 माइनस एक्स दूरी हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको तुम ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0 जहां पे सेंटर ऑफ मास है उसको ओरिजिन मान लो, तब उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो XCOM इज इक्वल टू, लिखूंगा मुझे x में ही दूरी मालूम है, तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा मैं। XCOM क्या होगा, ओरिजिन में ही मान लिया मैंने, तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखना m1 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू, ध्यान से ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, तो दिस इज x, यहां से यहां तक x, लेकिन ओरिजिन से जब मैं मेजर करूंगा मेरा लेफ्ट होगा, तो इसको मैं लिखूंगा -x। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी राखिब लगे। m2 का वैल्यू कितना है 4 और x2 वैल्यू কিমান হ'ব এফালে আছে রাইট সাইড আছে, তো মই 6 - x পজিটিভ লিখিম আর তলত হৈ যাব তোমাৰ মাস কিটা এড কৰি 2 + 4, তো এফালে হৈ গল 0 ইজ ইকুয়াল টু -2x + 24, ओके, -4x, और नीचे है तुम्हारा 2 + 4 is 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 0 is 0, तो यू आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू -2x - 4x इज -6x + 24। एक काम करो, इसको यहां भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6x = 24, यानी x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 24 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 4 मीटर इज द आंसर। हमने 2 kg से निकालना था, x माना था, x का वैल्यू 4 आ गया, 4 मीटर तुम्हारा आंसर आ गया। आगे बढ़ो, a wheel rotates at a constant angular velocity of 10 रेडियन पर सेकेंड, तो तुमको बोला है कि कितना रेवोल्यूशंस होगा 31.4 सेकेंड्स में, 31.4 सेकेंड्स में तुमको पूछा है क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है ना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, जैसे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सब सही चल रहा है ना, वीडियो में एक बार देख लूँ, बहुत बढ़िया, 22 मिनट हुए क्या? ठीक है, चलो लंबा होगा ये वीडियो। ऑलराइट, सो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना दिया है 10 दिया है, और टाइम कितना दिया है 31.4, यानी कि आ रहा है तुम्हारा 314 रेडियन। 314 रेडियन तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम्हें क्या चाहिए नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, जो भी थीटा है उसको 2 पाई से डिवाइड करो, क्योंकि एक बार जब चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री घूमता है, और 360 डिग्री रेडियन में होता है 2 पाई, एक बार जब चक्कर लगाएगा, है ना। तो नंबर कितना चक्कर लगाएगा, तो तुम्हारे पास टोटल रेडियन है 314, और 2 × पाई का वैल्यू मैं लूंगा 3.14। 3.14 से 314 को काटोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब 100 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 50, और आंसर विल बी 50। ऑप्शन नंबर बी 50 होगा यार। ठीक है, आसानी था। नेक्स्ट, find the moment of inertia of a uniform thin ring of mass 3 kg and radius for standard objects, और मैं लिखाইছিলো তাত ইয়াত ৰিঙৰ কাৰণে হৈ যাব mr², বাস ডিস্ক হলে mr²/2। ঠিক আছে, ओके, तो mr² m का वैल्यू 3, रेडियस का वैल्यू 2 स्क्वायर, दैट मींस 3 × 4 दैट इज 12 kg मीटर स्क्वायर। यस, ঠিক আছে, সলিড স্ফিয়াৰৰ জানিবা 2/5, হলো স্ফিয়াৰ 2/, এইবিলাক সব জানিব লাগিব, মই লিখাইছো এইবিলাক। নেক্সট চোৱা, ৰোটেশন আৰু এটা কোৱেশ্চন, টৰ্ক দিছে আৰু এংগুলাৰ এক্সেলাৰেশন দিছে। এটো যদি কোনবা স্টুডেন্টে যদি এনালজি ড্ৰ কৰি লয়, মই শিকাইছিলো फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। फोर्स के जगह तुम टॉर्क ला सकते हो, मास के जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए के जगह आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, बस फोर्स के जगह टॉर्क, मोमेंट लिख दो। अब क्या चाहिए अपने को, मोमेंट, अच्छा आई चाहिए, तो आई का वैल्यू हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाय अल्फा। टाउ का वैल्यू दिया है 50 न्यूटन मीटर, और अल्फा का वैल्यू दिया है 5, तो आंसर आ गया 10 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ही है ये सब क्वेश्चन। फिर बोला है हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्टर एट अ डेप्थ। मैं दुटा फॉर्मूला लिखाइছিলো, हाइटरो और डेप्थरो, तो यार डेप्थर फॉर्मूला यूज करी, g डैश इज इक्वल टू हबो g × 1 - d डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो g डैश का वैल्यू निकालना है g के टर्म में। ओके, और बोला है क्वेश्चन में जो डेप्थ है इट इज हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, माने d के जगह में लिख दूंगा re डिवाइडेड बाय 2, और नीचे re तो है ही, तो re ने re को मार दिया। ठीक है, तो यू आर गेटिंग g टाइम्स ऑफ 1 - 1/2, दैट मींस g टाइम्स ऑफ 1 - हाफ, एकर पर आधा गले की है, आधा तो है, तार माने तुम्हार g डैशर वैल्यू की पाया ऐसा g/2 पाया ऐसा, g/2 पाया ऐसा, g/2 इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
फाइंड द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेग इन फॉर्मूला बेस। एस्केप वेलोसिटी को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ g इनटू रेडियस, और ऑर्बिटल वेलोसिटी को लिख सकते हो तुम अंडर रूट ऑफ g टाइम्स ऑफ रेडियस। तो যদি তুমি ডিভাইড করা রেশিও লোৱা তো ইয়াত হৈ যাব ৰুটৰ ভিতৰত 2gr divided by gr, gr will cancel out gr, you are getting root 2. So the answer is ratio is root 2 is to 1. Root 2 is to 1 is option number B. Next, a wire of length 2 meter and cross section কিমান দিছে? Cross section দিছে তোমার 1 millimeter square is stretched by 1 millimeter। अच्छा, if force applied is 100, the stress calculate करना है। बहुत कुछ दे दिया, इतना चाहिए भी नहीं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था तुम लोगों को? फोर्स पर एरिया। ঠিক আছে, যোন স্টুডেন্টস না মোৰ এই ক্লাস 11 ৰ এন্টায়াৰ ফিজিক্সৰ ফৰ্মুলা গুটে ভিডিওটো কৰি পেলে এটো কৰি আছে না, এটা বহুত মজা পাব এই লেকচাৰটো। সব বস্তু বুজি পাব কৰবা ক'ত দি আছে, আৰু যদি এবাৰ পঢ়ি আহিছা তো আৰু মজা। ঠিক আছে, আচ্ছা जिए ना, चलो फोर्स 100 न्यूटन बोला है और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब भाई ये फोर्स न्यूटन ऐसा यूनिट में, मिलीमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, मीटर इज ऐसा यूनिट, वी हैव टू कन्वर्ट। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। या स्क्वायर दिया है 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, মানে ওপৰত হৈ গল 100 অক 10 টু দি পাৱাৰ 2 লিখিব পাৰো, আৰু তলত চোৱা -3 টু ওপৰত গলে -3, আৰু এটো -3 টু ওপৰত গলে -3, মানে হৈ যাব তোমাৰ 10 টু দি পাৱাৰ 2 + 3 + 3, 10 to the power 2 plus 3 is 5, 5 plus 3 is 8, answer is 10 to the power 8, 10 to the power 6 नहीं 7, 8 ये रहा। C is the right answer. In the problem above calculate the longitudinal strain। अच्छा, स्ट्रेन वाला बता दीजिए। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L। अब तुमको वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम ना। डेल्टा L किमान होबो, a wire of length 2 meter and cross section iman is stretched by 1 millimeter। अच्छा, iman delta L change in length is 1 millimeter and original length was 2 meter। okay, so এটো হৈ যাব তোমাৰ 1 millimeter divided by 2 meter। তো এটো কাকো কনভার্ট করা 10 to the power -3 divided by 2 है ना, মানে 1 into 10 to the power -3 divided by 2 মানে 0.5 into 10 to the power -3। हाँ ना, तो 5.5 যদি করো তো 10 to the power -4, ऑप्शन नंबर A, 5 into 10 to the power -4। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो फ्लूइड का क्वेश्चन आ गया। सरफेस ऑफ द वाटर, रॉ की वैल्यू दिया से जी वैल्यू दिया। अरे भैया, रॉ टाइम्स ऑफ जी इनटू एच, दिस इज द प्रेशर। ओके, गॉज प्रेशर 1000 ई बैकग्राउंड और गुरुंग 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 सोलिया से भाई 10 और h का वैल्यू कितना है 10 है। 10 टू दी पावर 1 2 3 सारी 5, 10 टू दी पावर 5 8। ऑप्शन सी, a liquid rises to a height h। okay, a liquid rises to a height h 4 centimeter capillary radius, what will be the rise height if the tube of radius 2r is used? अरे भैया ये तो कैपिलरी वाला दे, 2t cos theta divided by rho gr, याद है कैपिलरी राइज, 2t cos theta divided by rho gr। ते हमार रिलेशन टू सरफेस टेंशन ना लगे, हमार हाइट और कैपिलरी राइज और रेडियस और मदर रिलेशन टू दिया। ठीक है सर, तो यू कैन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तार माने मैं लिखिबा पारो h1 divided by h2 is equal to उल्टा r2 divided by r1। एता वैल्यूज अकॉर्डिंगली पुट करिले होल। a liquid rises to a height of 4 cm in a capillary tube of radius r, माने h1 का वैल्यू है 4 और r1 का वैल्यू कितना बोला है r। तार पिছত কৈছে व्हाट विल बी द राइज इन हाइट, माने h2 तुमा खुदी से केतिया व्हेन द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज 2r, r2 का वैल्यू 2r, r ने r को कैंसिल किया, 4 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू 2, काटाकाटी खेला এটা 2 হৈ যাব, তো h2 এর ভ্যালু আহি যাব তোমার 2 সেন্টিমিটার। অপশন নাম্বার বি। ঠিক আছে, আর মেন্টালিও কৰিব পারা, রেডিয়াসৰ লগত ইনভার্স রিলেশন আছে, যদি রেডিয়াসটো তুমি ডাবল কৰি দিলা তে হাইটটো আধা হৈ যাব, উল্টা হয় ন, রেডিয়াস যদি বাড়ি আছে হাইটটো কমি যাব, রেডিয়াস কিমান বাড়িছে ডাবল হৈছে, হাইটটো কিমান হৈ যাব आधा हो जाब। नेक्स्ट ए गंदा वाला फॉर्मूला जो था टर्मिनल स्पीड का,
द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ स्फीयर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड इज 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द रेडियस इज डबल्ड, क्या रिलेशन है रेडियस के साथ, वो तो फॉर्मूला से ही पता चलेगा। फाइंड द न्यू टर्मिनल स्पीड, 2/9 r स्क्वायर रॉ माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन थीटा। 2/9 r स्क्वायर रॉ माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय एटा, ये होता है टर्मिनल का फॉर्मूला, पढ़ाया था मैंने। अब तुमको रेडियस बोला है, डबल कर दिया है, तो रेडियस के साथ रिलेशन देखो, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो यू विल गेट v टर्मिनल वेलोसिटी इन केस 1 अपॉन v टर्मिनल वेलोसिटी इन केस 2 इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर। बस हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला केस में बोला है कि इसका वैल्यू है 5, 1 का वैल्यू है 5, दूसरा तुमको निकालना है, और रेडियस बोला है डबल कर दिया गया। तो पहले अगर r1 का वैल्यू r था, अब ये हो जाएगा 2r, अब इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। r ने r को मारा, तो 5 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी जो तुमको निकालना है केस 2 वाला इज इक्वल टू 1/4 20 आई बनेगी। एटू एफले लै जा, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 × 4 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर 20 होगा। नेक्स्ट, चलो हीट का क्वेश्चन आ गया। अब कन्वर्ट द टेम्परेचर चेंज ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। चेंज বুলি কৈছে দেই। সো মই এটা বস্তু জানো c/5 = f - 32 डिवाइडेड बाय 9। এটা কাম কৰো, চেঞ্জ অফ 25, तो ধৰি लो 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस करोगे तो 25 ही आएगा। तो ये चेंज ले लेते, तो पहले हम लोग 0 लेते हैं। चलो, तो 0/5 = f - 32 डिवाइडेड बाय 9। तो यार पर तुम्हारा हो जाएगा f - 32 = 9 × 0 is 0, 0/5 0, तो f का वैल्यू आ गया तुम्हारा 32, ठीक है। जब तुमने c का वैल्यू 0 लिया, f आया 32। अब 25 ले लो, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू f - 32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ऐसा ना। हाँ, এটা जब 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू f - 32 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 टाइम्स 45 इज इक्वल टू f - 32। तो यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा 45 प्लस 32, दैट इज योर 77। 77। तो চোৱা 0 পৰা 25 লৈ চেঞ্জ কৰোতে ফাৰেনহাইটত কি হৈছে 32 পৰা 77 লৈ গৈছে। তো ডিফাৰেন্স কিমান হ'ল? 77 - 32 কিমান আহিব? 5 আৰু ইয়াত 4, 45 আহিব। এইটো অপচন নম্বৰ বি। নেক্সট, তোমালোকে পজ কৰি ল'বা দেই, মোৰ তাত ইমান টাইম নাই এটা কোৱেশ্চন লিখিবলৈ বহি থাকিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো এইকাৰণে আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে স্লাইডটো। So a metal rod of length 1 meter expands by thermal expansion का क्वेश्चन है 1.2 millimeter when heated by 100 degrees Celsius. Okay, find the coefficient of linear expansion. ठीक है सर, तो coefficient of linear expansion और मैंने अल्फार वैल्यू खुदिছে यार। ओके, अल्फार वैल्यू खुदिছে, तो তুমি এটো ইউজ কৰিব পাৰা। change in length upon original length is equal to alpha delta t। डेल्टा एल का वैल्यू 1.2 मिलीमीटर, मैंने 1.2 × 10⁻³ एल का वैल्यू है 1 मीटर, मीटर को मीटर ही ले लो। अल्फा तुमको निकालना है। एंड चेंज इन टेम्परेचर यार 100 डिग्री सेल्सियस जो दिस है, ये तुम्हें फारेनहाइटत লৈ যোৱা বা কেলভিনত লৈ যোৱা 100 আহিব। सो दिस इज बेसिकली 100 ओनली। ओके, सो ये तो इधर लेके जाओगे तो क्या होगा 1.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अल्फा। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू आ गया 1.2 × 10⁻³ और ये टू होगा -2, तो 1.2 × 10⁻⁵। ऑप्शन नंबर ए। तो इधर केल्विन में आंसर ऑप्शन में दिया, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। चेंज इज ऑलवेज सेम वेदर इट्स इन सेल्सियस और इन फारेनहाइट और केल्विन, डजंट मैटर। नेक्स्ट, in a thermodynamic process a system absorb माने endothermic process, तो dq का वैल्यू जो है वो है +300 and does 120 जूल ऑफ, अच्छा dw का वैल्यू भी +120। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है। अब तुमको इंटरनल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो dq इज फर्स्ट लॉ लगा दो, dq इज इक्वल टू dw + du, यू नीड du, सो du इज इक्वल टू हो जाएगा dq - dw।
वैल्यूज पुट करो, डी क्यू का वैल्यू है 300 और ये हो जाएगा 120, दैट मीन्स योर 180 जूल. जस्ट अ सेक. Okay, let's continue. An ideal gas is compressed at a constant pressure of 2 into 10 to the power 5. 2 into 10 to the power 5, ठीक है. फ्रॉम इतना से इतना, तो कैलकुलेट द वर्क डन. तो वर्क डन होता है तुम्हारा P डेल्टा V. प्रेशर का वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 5 और चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 5 और पावर 3. तो फाइनल वॉल्यूम इज 3 इनिशियल, तो चेंज की माना फाइनल 3 माइनस 5, ठीक है सर. तो 2 into 10 to the power 5 into 3 minus 5 is minus 2. 2 into minus 2 minus 4 into 10 to the power 5 आएगा. minus 2 minus 4 into 10 to ऑप्शन नंबर ए माइनस, ठीक है सर. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजिन. সেইদিনাখনে ফৰ্মুলাটো তোমাক শিকাইছিলো कार्नोट ইঞ্জিনৰ ফৰ্মুলাটো. মই কৈছো এইবিলাক এক্সামত ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লগা হয় যে এফিशिएंसी ফৰ্মুলা इज 1 माइनस T2 बाई T1. वैल्यूज पुट कर दो. 1 माइनस T2 का वैल्यू है 300 और T1 का वैल्यू है 600. तो 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ, ठीक है. परसेंटेज किमान हम, तो परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई करा फ्रैक्शन किमान काटि गल 50 टाइम्स. 50% इज द आंसर. सिंपल. By what factor does average kinetic energy of a gas molecule if its absolute temperature is triple? अरे भैया काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 RT, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर को अगर तुम 3 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा? 3 गुना ही होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3 टाइम्स. हाँ, इफ RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्रीज V, व्हाट इज द वैल्यू एट 927 डिग्री? नाउ लुक एट दिस. RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइडेड बाय m. माने तुम्ही टेम्परेचर লগত যদি লিংক করা VRMS, that is basically proportional to √T. But remember this is in Kelvin obviously because it's not change, it's absolute temperature. तो अगर तुम लेते हो स्टार्टिंग में बोला है देखो V1 upon V2 is equal to √T1 upon T2. अब वैल्यूज को हमें बस केल्विन में लेना है, इस बात का ध्यान रखना है. स्टार्टिंग में बोला है V, ठीक है. बाद में कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं V2 का वैल्यू निकालूंगा, ये क्वेश्चन में निकालने बोला है. और यहाँ पे √T1, तो 27, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करो और यहाँ पे भी 273 ऐड करो. तो 273 प्लस 27 इज 300 एंड 927 प्लस 273 इज 1200. सो इट कम्स आउट टू बी √0.00003 1/4, ठीक है सर. तो V डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू √1/4. √1/4 माने 1 रूट के बाहर आएगा तो 1, 4 बाहर आएगा तो 2, 1/2. So from here you are getting V2 is equal to 2 times of V. 2 times of V. Option number B is the right answer. Next, simple pendulum है SHM और क्वेश्चन नहीं गल. हाँ, मी लास्ट चैप्टर पालू है ऑलमोस्ट. A simple pendulum has time period of 2 seconds on Earth. What will be its time period if it is taken to a planet where gravity is 1/4 of Earth? अच्छा ठीक है. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बताया? 2 pi √L/G. So time period it is inversely proportional to √G. माने बुझी पाला है. T1 by T2 लिखिले मैं की लिखी मियाद √, उल्टा लिखी बोली वो G2 by G1 बस. अब देखो T1 का वैल्यू अर्थ वाला T1 और प्लेनेट वाला 2 ले लो. तो अर्थ वाला T1 कितना बोला है? 2. प्लेनेट वाला T2 तुमको निकालना है. √G2 का वैल्यू क्या बोला है? इट इज 1/4 ऑफ आर्ट्स, तो G/4 होगा ये. अरे ये तो G हम ही जानू है, ठीक है सर. तो G ने G को मारा तो 2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फिर से √1/4, यानी कि हो जाएगा 1/2. तो यहाँ से T2 का वैल्यू अगर निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T2 इज इक्वल टू 2 × 2 हो जाएगा तुम्हारे 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट्स विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ किमान कैसे
10 हर्ट्ज। इफ द मास इज क्वाड्रिपल, 4 गुना कर दिया गया है मास को कितना गुना कर दिया गया है? 4 गुना कर दिया गया। तो बोला है कि फ्रीक्वेंसी नया क्या होगा? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसको उल्टा करोगे 1 अपॉन 2 पाई और इधर हो जाएगा अंडर रूट k अपॉन m। तो फ्रीक्वेंसी और मास में रिलेशन देखो इनवर्स रूट, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे। तो f1 बाई f2 क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ, उल्टा है ना, तो m2 बाई m1। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। क्या क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी पहला केस में बोला है 10 हर्ट्ज और उसके बाद सेकंड केस में तुमको निकालना है, और मास बोला है क्वाड्रिपल, क्वाड्रिपल माने सारी गुण है उसे, तो m2 वैल्यू टू 4 टाइम्स ऑफ m1 है उसे, और नीचे तो m1 है, m1 ने m1 को मारा, अंडर रूट 4 होता है 2, तो 10 अपॉन f2 इज इक्वल टू 2 काटेगा इसको 5, तो f2 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 हर्ट्ज इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट a wave or question आएगा last chapter আমি শেষ কৰিব exercise session to। a wave source produces 20 waves in 2 seconds। okay, if the distance between two successive crests is 5 centimeter then the wave speed is, so centimeter दिस है आपको at the same time। पहले तो भाई एक काम करो, तुमको स्पीड निकालने बोला है और लैम्डा का वैल्यू, सक्सेसिव क्रेस्ट का बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा, या सक्सेसिव ट्राउ के बीच का जो दूरी होता है। तो तुम्हारे को दिया लैम्डा का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में बोलोगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ओके, और वेव स्पीड निकालना है तुमको, तो वेव स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किमान होबो? सो 20 वेव्स इन 2 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी बोलेगा, तो 10 इंटू लैम्डा का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, तार माने 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 মানে কি মানে 0.5 আহিব এইটো। অপশন নম্বৰ বি 0.5। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। अरे भैया ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय 2L फंडामेंटल का, अब पुट करो वैल्यूज। V का वैल्यू कितना दिया है? 340 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ का वैल्यू कितना है? 1.7, ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3.4। 3.4 से अगर तुम काटते इसको 340 को 1 टाइम्स 3.4, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट और 100 आएगा आंसर। 100। ओके, सो गाइज विद दिस वी आर डन विथ वट एवर यू हैव डिमांडेड। क्लास 11 का चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो टॉप 100 क्वेश्चंस है उसमें से मैंने क्लास 11 का मेन क्वेश्चंस कवर किया। ये वकील ने बनाया है, मैंने ट्राई किया है तुमको चैप्टर वाइज सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। और इसको करने के पहले वो क्लास 11 का जो सब फॉर्मूला वाला जो वीडियो है फिजिक्स का, एवरी सिंगल फॉर्मूला ऑफ क्लास 11 चैप्टर वाइज हेतु करार पिছত एटु करिबा, तेतिया तुमी भालके बुझि पाबा। इता मैं नेक्स्ट की करिम क्लास 12 এনেকা सब फॉर्मूलाजर এটা লেকচার লৈ আহিম, এন্ড তাৰ পিছত ক্লাস 12 গুটেখিনি क्वेश्चंस কৰাম। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, তোমালোকে দেখিছা, আৰু इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।